96 क्वेश्चन चेक करो. A proton is projected in a direction perpendicular to uniform magnetic field with velocity v and electron projected along the line of force. What will happen to the proton and electron? एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर गया प्रोटॉन, तो इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इलेक्ट्रॉन गया, इट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन. यस और नो? अच्छा सॉरी, दूसरा भी मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स क्या देगी? क्यूवी भी साइन 0 डिग्री, इट इज 0. तो आंसर क्या बनेगा? Proton will move in a circle with constant speed and there will be no effect on the motion of electron. B Bombay will be right answer. Check करो. Yes, sir. Next question देखो जी. A charge is moving velocity v in x direction. Is subjected to field of magnetic direction negative x direction. A charge is moving velocity v in x direction. क्यों? ऐसे. और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे. थीटा कितना हो गया? 180. F का फॉर्मूला क्या आएगा? QVB sin 180. Answer will be 0. Remain unaffected. Got it? So force 0. So answer is A. Remain unaffected. चेक करो बेटे. ठीक है दोनों क्वेश्चन? Yes, sir. No. Next question. Electron proton enter magnetic right angle. तो 98 में हमारे पास याद कर R का फॉर्मूले 3 थे. mv by qb. mv is momentum by qb. It is root 2mv by qb. Or you can say that 2m q into v by qb. Remember the formulas? mv by qb. mv is momentum by qb. Momentum is root 2mv by qb. रूट एनर्जी को क्या लिखा? चार्ज इनटू पोटेंशियल. 98 क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंटर मैग्नेटिक राइट एंगल द सेम एनर्जी व्हिच आर द फॉलोइंग. एनर्जी सेम. इट इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज सेम. तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगा? मास पे और चार्ज पे. तो चार्ज इज सेम, तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम क्या कहेंगे? दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व और ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व. तो इलेक्ट्रॉन का रेडियस छोटा होगा और प्रोटॉन का रेडियस बड़ा होगा. तो हम क्या कहेंगे? ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व. ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन इज लेस कर्व. चेक करो. यस और नो?
Done better 98. Sir, 1 minute. Yes, sir, done. 99. What limits the energy that can be imparted to the charged particle in a cyclotron? Now cyclotron में limitation याद है ना? m naught 1 minus v square by c square. That is variation of mass with velocity. Yes or no? Yes. Variation of mass with velocity. As the velocity increases, mass increases. तो इसलिए मैं एक लिमिट से ज्यादा velocity नहीं बढ़ा सकता हूं. Remember बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now 99 देखो. What 100. A uniform magnetic field acts at right angle to the direction of motion of electron. As is the electron with circular path of radius 2 centimeter. Speed of electron double. The radius of circular path. अब देख यहाँ पे speed double कर दी. R का फॉर्मूला क्या आएगा? mv by qv. So as velocity is doubled, radius will also double. तो implies नया radius r dash क्या आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हंड्रेड वन करें. हंड्रेड वन होगा सबका. Two parts, Yes, sir. particles X and Y having equal charges after being accelerated through the same potential difference enter region of and discuss circular radius r1 and r2. ठीक है, दो particles दे दिए accelerated through the same potential difference. Clear? masses के बारे में नहीं बताया उसने. अब ध्यान से देख, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज into potential. Yes or no? Work done is charge into potential, or we can say that energy is equal to charge into potential. बात एक ही है. Yes, sir. So they are accelerated through same potential. Must be equal to half m1 v1 का स्क्वायर. दोनों के मास के बारे में नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि चार्ज सेम है. यहाँ पे v वेलोसिटी है. Must be equal to half m2 v2 का स्क्वायर. तो हमने वो किसके बराबर डाल दी? चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी करके काइनेटिक एनर्जी के बराबर डाल दी. तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? ये हाफ और हाफ कटे. m1 v1 का स्क्वायर m2 v2 का स्क्वायर. m1 by m2 it is v2 का स्क्वायर v1 का स्क्वायर. m1 by m2 इक्वल टू v2 का स्क्वायर बाय
V1 का स्क्वायर चेक करो, यस और नो? अब उनके मासेस की रेशियो निकालनी है। R इक्वल टू M1 V1 बाय QB R1, R2 M2 V2 बाय QB। डन बेटा? चेक करो बेटा जी। R equal to MV by QB. Now we need to solve for M1 by M2. The ratio of their masses X and Y. So if we calculate from here R1 by R2, it is M1 V1 by M2 V2. Clear? Then M1 by M2, it is R1 V2 R2 V1. Done. अब हमें Yes, sir. ऑप्शन में चेक करो बेटा, सारी टर्म्स में आर रेडियस की टर्म में दी है, इसका मतलब मेरे को ये एलिमिनेट करना पड़ेगा। यस और नो? अब यहां से देख, एलिमिनेट करें, अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयर रूट कर दूं, तो m1 बाय m2 इक्वल टू r1 बाय r2 इंटू b2 बाय b1 क्या बनेगा? रूट m1 रूट m2। यस और नो? चेक करो, b2 बाय b1 इज रूट m1 बाय रूट m2। यहाँ पे स्क्वेयर है बेटे, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं था, हटाने के लिए टेक स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, रूट m1 बाय रूट m2। इसके बाद हम क्या करें? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, m1 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर r1 बाय r2 इंटू m1 बाय m2। चेक करो, ठीक है जी? ये दोनों कटे तो रेशियो क्या बनी? m1 बाय m2 इज r1 बाय r2। हमने वेलोसिटी एलिमिनेट की है फॉर्मूले में से। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला आता हूं, मास वेलोसिटी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड सेम थे, तो पहले हमने एनर्जी के फॉर्मूले से वेलोसिटी का रिलेशन मास के साथ निकाला, यहाँ पे हमने वेलोसिटी एलिमिनेट कर दी, मास की टर्म में मास काट दिया, मास और रेडियस का रेशियो बन गया लास्ट। सर यहाँ पे R1 और R2 का भी स्क्वायर होना था ना? हाँ, ओह बिल्कुल ठीक, सॉरी, थैंक यू। डी दिल्ली, थैंक यू बेटा। नहीं, हाँ डी दिल्ली बन जाएगा, हो सकता है वो m2 बाय m1 निकाल रहा हो, ऑप्शन नहीं है तो रेशियो पूछी थी उसने। थैंक्स खुशी, मैं ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट करें 102।
102 हो गया सबका, टिक करवाऊं? यस सर हो गया। वेरी गुड। किसने कहा था ये? ईशा ने? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। ईशा टेस्ट दे गए थे आप आज सारे उधर? यस सर। टेस्ट दे गए थे आप 40 में आके? यस सर दे दिया था। कौन कौन आया था? हर्षिता, विशेष और मैं आई थी बस। अच्छा, जतिन नहीं आया? नो सर। और गुरवीर भी नहीं आया था? भी नहीं आया? यस सर। चलो ठीक है। 102 करें? 102 सबका हो गया, फिर मैं नहीं करवा रहा हूँ। 103 पे आते हैं। A particle mass m charge q is placed at a rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy. Now, kinetic energy. It is work done. Can be written as charge into potential. ठीक है? Now, also it can be written as force into distance. Force कितनी आएगी? QE into distance y. तो ये वर्क डन आ गया नहीं आएगा? Q into E into y. चेक करो। सी चंडीगढ़। वन 104 चेक करो। ये ना मैग्नेटिक फील्ड, सोच के बताओ। द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो a circular path. When it follows a circular path, direction keeps on changing. Direction keeps on changing. Therefore, momentum changes, but energy remains same. Momentum changes, but energy remains same. क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। हंड्रेड 105 करें? देखो a proton is rotating along circular path with kinetic energy k in a uniform magnetic field B. If the magnetic field is made 4 times, what is the kinetic energy of proton rotation? Now, cyclotron हमने फॉर्मूला क्या था? Q square B square R square by 2m. Dot. Yes or no? In a cyclotron, we did the formula Q square B square R square by 2m. When the और radius का फॉर्मूला क्या है? mv by qb. अब चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, b और r चेंज हो रही है। अगर देख when b increases r decreases, है ना? ये फॉर्मूले में b डिनोमिनेटर में, अगर b बढ़ेगी तो r कम होगी। if b increases 4 times, then radius decreases 4 times. Yes or no? अगर मैग्नेटिक फील्ड B increases 4 times, the radius decreases 4 times. तो यहाँ पे देख
क्वेश्चन क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी, चार्ज और मास तो सेम थे, बी स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर बी इंक्रीज होते तो रेडियस डिक्रीज करता है, दैट इज द रेशियो will remain same, that is kinetic energy will remain same. Check करो, yes or no? आज भी क्लियर हुआ? यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स बढ़ा रहा है, रेडियस 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे नीचे 1/4 का स्क्वायर 16, 16 कट जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम। दोनों फैक्टर्स थे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रेडियस भी चेंज हुआ। 106 में वो कहता है रेडियस सेम, चार्ज सेम, m सेम, तो kinetic energy is proportional to b square when b increases by 4 times, kinetic energy will increase by 16 times, kinetic energy will increase by 16 times। सर ऊपर वाले का डी दिल्ली है ना? हाँ हाँ जी, ऊपर वाले का डी दिल्ली 105 का, और 106 का आ जाएगा ए एप्पल। बेटे सर्वेश, इसमें बी और आर दोनों चेंज हो रहे थे, बी बढ़ती है तो आर कम होती है, तो उस हिसाब से टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। इस केस में 106 में उसने बोला कि रेडियस टू बी केप्ट सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो यहाँ पे b का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। चलो 107 करें, कर दो बोर्ड क्लीन। सर्वेश कर दो, ईशा, खुशी, प्राची। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। No. 107, a particle A is a charge Q, A का चार्ज कितना है प्लस Q, और B का चार्ज प्लस 4Q, having the same mass, इसका भी मास है, इसका भी मास है, fall through rest to the same potential difference ratio. Now potential difference is equal to charge into potential is equal to half m v square। चेक करो, पोटेंशियल सेम, चार्ज डिफरेंट, मास सेम, वेलोसिटी निकालनी है, तो चार्ज क्यू इंटू वी हाफ इंटू एम, वी ए का स्क्वायर, डिवाइड कर दूं, चार्ज 4Q इंटू वी हाफ इंटू एम इंटू वी बी का स्क्वायर, ये सब रेशियो में कटे, तो वी ए बाय वी बी क्या है 1:2, आगे नहीं आगे। 107 चेक कर, हो गया। इलेक्ट्रॉन सॉरी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेन एक्सवाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इन z डायरेक्शन, ये करंट दे दिया, करंट देखो क्या दे दिया क्लॉकवाइज, अब क्या लगाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स इधर को आ रही है,
तो इस पे फोर्स इधर को रहेगी, इस पे फोर्स इधर को रहेगी, ऐसे ऊपर को रहेगी, नीचे को रहेगी। तो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से फोर्स बाहर को है। चेक करो, यस और नो। सर ये भी दिल्ली डी। हाँ जी, 108 एक्सपैंड करेगा। हाँ सर, इसका आंसर भी डी हुआ। डी दिल्ली। सर कल क्या टाइमिंग होगी कल तो छुट्टी है। और परसों? सेम टाइम, शाम को 5 बजे। ठीक है। 109 चेक कर। अब क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन मूव सर्कुलर ऑर्बिट विद यूनिफॉर्म स्पीड v, मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, b निकाल रहा है सेंटर पे। देख, I का फॉर्मूला क्या होता है? Q by T, इट इज E by T। E T कितना है? 2 pi r by v। सोच, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम पीरियड आ जाएगा। तो I कितना आया? EV by 2 pi r। चेक करो, तुमसे B पूछ रहा है, सर्कल का म्यू नॉट I by 2r होता है। इट इज म्यू नॉट बाय 2r। I की वैल्यू डाल दें, EV by 2 pi r। तो B इज म्यू नॉट EV 4 pi r स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा रेडियस, R ऊपर ले आता हूं, B नीचे ले आता हूं, तो R स्क्वायर क्या बनेगा? म्यू नॉट EV 4 pi B। तो अगर R की प्रोपोर्शनलिटी चेक करूं तो रूट ऑफ B by B बना। रिमेंबर क्वेश्चन समझ में आया बेटे? I का फॉर्मूला Q by T, Q is E by T, टाइम पीरियड क्या है? 2 pi r by V। करंट आ गया, सर्कल के सेंटर में म्यू नॉट I by 2r। ठीक है, अद्वैक सबको क्लियर हुआ? ईशा, खुशी, Yes, साहिब? sir. Yes, sir. 110. Two conductors separated distance carry current I1 I2 in the same direction. I1 I2 सेम डायरेक्शन। तो फोर्स क्या आएगी? म्यू नॉट I1 I2 2 pi d into L। याद है? फिर कहता है one of them current is increased to 2 times and direction is reversed. When the current is in same direction they attract each other. When the current is in opposite direction they will repel each other. इसमें करंट I1 रख दिया, इसमें करंट 3 times I2 कर दिया, but reverse। और डिस्टेंस सॉरी करंट ट्वाइस एंड डायरेक्शन डिस्टेंस 3d। तो न्यू फोर्स क्या देगी? म्यू नॉट I1 into 2I2 2 pi 3d into L। बट अब रिवर्स रिपेल हो जाएगा, तो F डैश क्या जाएगा? माइनस 2/3f। तो पहले अट्रैक्शन थी, बाद में रिपल्शन होगी, इसे नेगेटिव साइन डाल दिए, आंसर क्या है? माइनस 2/3f।
111. Two strings of electron moving parallel to each other same direction. क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट के रिपेल? दोनों Repel. आंसर आएंगे. अगर उनके बीच का डिस्टेंस कम है तो रिपेल करेंगे, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा तो वो अट्रैक्ट करेंगे. तो ए एंड बी बोथ आर राइट आंसर. 112 हो गया, आई थिंक सो हो गया होगा. Yes. 113. सर पार्टिकल 111 है. का हाँ जी, 111 का कौन सा है? ए एंड बी बोथ. याद करो सर्वेश कराया था, अगर उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है then they repel attract each other. If the distance is less they repel each other. ठीक है. 112 तो सिंपल है, एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल करना है. 113. A particle in charge q mass m is proportional with the speed v towards the wall at distance d पर one minimum magnetic field exists. अब देख 113 पहले भी कराया था एक बार, याद हो आपको. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वॉल है. ये डिस्टेंस कितना है? ठीक है. ये चार्ज है, वेलोसिटी v है, ऐसे घूम जाए तो r इज mv बाय qb. तो b क्या बना? mv बाय qr. तो मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ग्रेटर देन mv बाय qd. जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी रेडियस उतना कम होगा. डी डेल ई. बेटे जब लिंक बंद हो जाएगा विद इन 2-3 मिनट फिर से ज्वाइन कर लेना ताकि रिकॉर्डिंग सेव होने का टाइम. 114. 114 पे कहता है ये इंक्लाइंड प्लेन है अल्फा. ये एक रॉड है, साइड व्यू देख रहे हो, ऐसे रॉड है, 3D में है डायग्राम. इसका कौन सा कंपोनेंट नीचे लगेगा? md sin अल्फा. ठीक है, md sin अल्फा मस्ट बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स. अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर दी है तो फोर्स ऊपर आ जाएगी PIL. ये भी अल्फा होता है, ये फोर्स क्या आ जाएगी? F cos अल्फा. तो mg sin अल्फा मस्ट बी इक्वल टू BIL cos अल्फा. करंट पूछा था, मास कितना दे दिया? 10 ग्राम. 10 डिवाइड बाय 1000 G10 sin 60. मैग्नेटिक फील्ड √3.